गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन का। ये कुछ क्वेश्चन है जो अभी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग से फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, अभी ये सेकंड पार्ट है। और हर एक यूनिट के अंदर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वही मैं आप लोग से शेयर करूँगी। हम बात करेंगे यूनिट 6 डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के ऊपर होगा। इसमें शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन हॉस्पिटल। व्हाट इज द incidental report, differentiate record and report, state 4 guidelines for reporting. What is the transfer report? What is the progress note? State 4 guidelines for recording. What is the meanings of documentation? What is the meanings of computerized documentation? This is the cases to be included under medical legal record, right? यूनिट 7th है, वाइटल साइन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि डिफाइन प्रेक्से, एक्सप्लेन नर्सिंग केयर ऑफ फॉर केयर ऑफ अ क्लाइंट विद प्रेगनेंसी। नेक्स्ट एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर फैक्टिंग पल्स, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर फैक्टिंग रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक एंड फैक्टर फैक्टिंग ब्लड प्रेशर्स एंड डिफाइन hypothermia, discuss nursing measure for hypothermia, discuss on abnormal pulse, discuss on pattern of abnormal respiration, discuss on types of fever, classify cold and hot application, discuss on purpose and indications of both। 10 आ जाता है इसके अंदर क्वेश्चन, डिफाइन ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन स्टेप इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। यूनिट नंबर 8 आ जाती है, हेल्थ असेसमेंट पर आता है शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ हेल्थ असेसमेंट, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ patient unit for physical examination, discuss on method of physical examination, discuss the significance history collection in health assessment, explain the assessment of gastrointestinal system using techniques of physical examination, explain the assessment respiratory system using techniques of physical examination, write in detail recording of physical examination finding from head to toe। Question number 8 है, explain the assessment of cardiovascular system using techniques of physical examination। What are the methods of health assessment? Explain in detail any one method। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ पाल्पिलेशन विद एग्जांपल। यूनिट नंबर इसके अंदर जो आ जाएगी, मैं मतलब कि 9th यूनिट है, 10th यूनिट तक शेयर करूंगी, जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट एंड लिनर। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है, डिफाइन इन्वेंटरी एंड नेक्स्ट आएगा व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ पे इंसिडेंट, डिग्निश बिटवीन डिस्पोजल एंड रियूजेबल एंड आर्टिकल्स। नेक्स्ट आ जाएगा मेंशन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, मेंशन एनी 4 इक्विपमेंट यूज्ड इन ओरल केयर, नेम एनी 4 रबर गुड्स, लिस्ट डाउन टाइप्स ऑफ रबर कैथर्स, what is the meaning of condimentations of article, expand CSST, what is the autoclaving, right? Unit number 10th है, meeting needs of patient। long ऐसे क्वेश्चन, endless fact of neglected mouth, explain the process of oral care in the unconscious patient, mention types of bed making, explain preparations of post operative bed in detail, discuss the procedure of bath in bedridden patient, what is the meaning of nasogastric tube feeding, explain the step of nasogastric tube feeding, explain सॉरी इसमें आ जाता है डिफाइन यूरिनरी कैथराइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ यूरिनरी कैथराइजेशन इन फीमेल पेशेंट एंड डिफाइन एनीमा, क्लासिफाई एनीमा, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ सिग्निफिकेंट and principal and anema, define bed sore, what are the causes of bed sore, explain the nursing management of patient with bed sore, define comfort and list the factor influencing comfort। next है, explain the type of uses of comfort device, define rest and sleep, what are the stages of sleep, discuss the factor affecting sleep, what are, write the factor affecting oxygenation, list the methods of oxygen administration, write the procedure of oxygen administration through nasal cannula in detail, enlist the area of pressure point, explain the nursing management for prevention of bed sore in bedridden patient। next है, define pediculosis, explain the process of head wash in bedridden patient, differentiate mobility and immobility, state the principles of body mechanism, describe the complications of immobility। short ऐसे क्वेश्चन है, explain complications of neglected oral hygiene, explain role of nurse in prevention of physical hazards, describe the role of nurse in providing safe and clean environment, discuss the role of nurse in prevention of decubit ulcer, explain the importance of sleep and rest, discuss the factor affecting nutritional needs, explain the step of back care। next explain gastrostomy feeding, describe characteristic and composition of urine, explain Benedict test for urine sugar, explain factor affecting bowel elimination। next define constipation, explain the nursing and measures to prevent constipation, explain the techniques of administration and processes and NEMA, explain the process of stage bath, right?
तो ये क्वेश्चन थे जो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। थर्ड यूनिट आएगी जो कि आप लोगों से साथ में जो 11 से लेके 16 तक जो बची है वो आपको थर्ड पार्ट में शेयर करूँगी। काफ़ी लंबी यूनिट हो जाती है और ये जो क्वेश्चन शेयर करने का मतलब है कि जैसे कि जो यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे सेम रहते हैं लेकिन आपको घुमा फिरा के मतलब यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो डेफिनेशन ज़रूर लिखना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। आपको डेफिनेशन लिखना है। टाइप्स पूछ रहा है तो उसके बाद आप टाइप्स लिख देंगे और आपको एक ब्लैक मतलब स्केच ले लेना है। स्केच के साथ आपको एक अंडरलाइन करनी है जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है तो वो जो टॉपिक होता है उसे देखता है कि इसमें ये पॉइंट है, मतलब बेस्ट पॉइंट होने चाहिए अच्छे वाले। तो उसमें थोड़ी थोड़ी हेडिंग पड़ेगा, ठीक है। बीच में वो कम पढ़ते हैं, ऊपर का हेडिंग अच्छे से पढ़ लेते हैं और डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये जो इनका तरीका है मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो अटैम्प्ट किया है इन्होंने, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया है, किस टाइप से किया, अच्छा किया है। इस टाइप से उनके मतलब इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है और अच्छे मार्क्स मिल भी जाते हैं। तो इसलिए आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं और पूरी एक बार आप अच्छे से यूनिट को अच्छे से रीड करें और ये जो क्वेश्चन आप लोग से शेयर करूँ, इन क्वेश्चन का आंसर खुद करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप मतलब कितना कर सकते हैं, ठीक है, और कितना नहीं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं, 5 एंड 8 10 मार्क्स के होंगे, 15 के। तो आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन जिस टाइप के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद प्रिपरेशन करना है इस चीज़ के लिए। पहले पूरी यूनिट एक बार अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जिस यूनिट में जो क्वेश्चन है उसको अपने आप करने की कोशिश कीजिए, राइट। इससे आपका अच्छे से अटैम्प्ट होगा। जब भी अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।